Okay, good afternoon. Let me share the screen. So we were discussing about the genetics, the Mendelian genetics, and we had seen I think we had discussed about the principles of Mendel. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. And what about the screen? Screen is visible? Yes, Yes, sir. sir. It is visible. Yes, sir. Okay, okay. So we had seen that for every character there was a factor which was, later termed as allele, which would depict the character in physical appearance also. In physical appearance also, not sorry, in physical appearance only, the earlier characters were studied, right? At the time of Mendel, only the physical appearance of the characters were studied. But he could find some different unexpected results of the characters, the appearance of the characters. That's why he had to assume, and he could come up to some conclusions. And one assumption was that, okay, of course, these factors which are there in the body are not unit entities. They are, the pair. They are in pair, and thus the pair of alleles, the concept of pair of alleles was concept came into the existence. And then there were two traits, that for every character there were two traits, and which is very frequently physically displayed or seen, that when it is being frequently displayed, it is usually called as the dominant trait of that particular character, and the one which is not displayed so frequently, because of the reasons you all know it. Because when as every character is being related to one pair of alleles, and each pair, if the trait, if it is for the dominant trait, and both of the both the units of that pair are of dominant, then the display will be dominant physically. And if the uh, both the units of that pair are recessive, then the recessive trait has been displayed. But if that pair of alleles depict or consist of one dominant and one recessive allele, then usually it's been seen that there only one character has been, the one trait has been displayed, and that particular trait has been called as dominant one. And that's why on physical appearance and physical observations, uh, the characters were being uh, analyzed in a different way. But when Mendel started assuming that these characters are related to a pair of alleles, then he had come up with a new combination of new, understanding, that is genotypic expression. So beyond dominant and recessive alleles, we will go a bit about the dominant alleles and the recessive alleles. There are some exceptions to Mendel's important principles. Those principles are law of dominance, and law of segregation, and law of independent assortment. I think you all have those things clear in your mind before going ahead. And then some alleles are neither dominant or nor recessive. Some are controlled by multiple alleles or many genes. Okay, as we had seen some examples, like color of eye and color of skin, they are, they are not at all the expression of one pair of alleles. They are multiple. They are the expression of multiple genes or multiple alleles. Right. So now we would see sometimes when the pair of alleles, they do not carry the trait of being dominant or the recessive, then there are some different type of results, are different types of expressions have been observed. And let us see one of them.
few of them. Uh, Let us consider the case in which the allele is not completely dominant or neither it's not been recessive too. So we would consider the case in which one allele is not completely dominant over another and is called incomplete dominance. That means if suppose, as we had seen earlier example, that tall has been represented as capital T and dwarf is represented as small t. Okay, and capital T, that is tall, is dominant over small t, that is dwarf. So it shows that it's a complete dominance, because when they come in this kind of combination in a pair of alleles, the dominant expresses itself. That means when the combination comes as capital T and small t, the individual expresses himself as tall only, not dwarf, or not a middle way and a half-away infinite, half-away expression, right? Half of tall and half of dwarf is expressed, and the individual comes up with some different expression. No. So when in cases where the Mendelian dominance is not being expressed as the Mendel has concluded, so in those cases, what happens? If one allele is not completely dominant over the other, it is called incomplete dominance. How does it express itself? Let us see that. This means the heterozygous phenotype. You know, heterozygous phenotype. That means one in the pair of alleles, one unit is of dominant and another is of recessive. That is a heterozygous condition. Okay, so this means that the heterozygous phenotype is a blend of homozygous phenotypes. What does that mean? Huh? Heterozygous phenotypes means phenotypically those who express, like if we consider tall and small, tall and dwarf, if it is in heterozygous condition in terms of genetics, in terms of alleles, even if it is heterozygous, it physically or phenotypically displays a dominant character only. That is the tall only. But, and what is in homozygous phenotype? Homozygous phenotypes means if both the units of that pair of alleles are of dominant, it would express the dominant only, right? So in normal cases, when the Mendelian genetics are followed, even in the heterozygous conditions, the phenotypically the dominant would express itself. But in such cases where the allele is not completely dominant over the other, then this is called incomplete dominance, and in that situation, the heterozygous condition will not express the dominant one, it will express a blend of it, a mixture of it. Okay, so example, the homozygous red flowers. Homozygous red flowers, those are RR. Okay, crossed with homozygous white flowers, that is WW. We haven't used here small r for white. Why? Because these particular traits or the alleles are not completely dominant. So when these red flowers are crossed with the homozygous white flowers, that is WW, make a heterozygous pink flower, that is RW. Okay, that means हम Punnett diagrams, Punnett squares के diagrams हम यदि draw करेंगे, तो red flowers के जो commits होंगे capital R होंगे, right? And with जब homozygous white flowers से react करेंगे, ये दोनों अपने अपने एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. R represents the red color of the flower and W represents the white color of the flower. But the traits जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स जो है एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करती, यानी कि डोमिनेंट वाला जो एलील है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता. इसीलिए जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, जैसे कि हमने कहा कि रेड फ्लावर लिया तो उनके गमेट्स बनेंगे कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर्स के यदि हम गमेट्स चेक करेंगे तो वो बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू, राइट? अब लेकिन जब इनके कॉम्बिनेशंस मिलेंगे तो हमें
all together all the combinations will be of RW RW RW, right? यानी heterozygous condition मिल गया। अब ये heterozygous condition यदि मान लीजिए white और red में से red dominant हुआ रहता तो these RW would have expressed themselves as red only, but it doesn't happen, and it did not happen, and we have got a different color that is called pink color. That is a blend of red and white. These different genotypes are, अब genotypically हम देखेंगे तो कैपिटल R WW और RW ये 3 टाइप के genotypes हैं, राइट? उसके बाद जैसे लिखा है नो लोअर केस एलिल्स यूज्ड, व्हाई देयर आर नो लोअर केस, जब भी मैंने बात की थी लोअर केस एलिल्स हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यदि मान लीजिए R डोमिनेंट रहा होता व्हाइट के ऊपर तो हमने व्हाइट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया होता, क्योंकि व्हाइट डोमिनेटेड नहीं है, राइट? R डोमिनेंट नहीं है और व्हाइट रिसेसिव नहीं है कंप्लीट, इसलिए हमने इनको सेपरेट लेटर्स से इनको हमने डिपिक्ट किया है। सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन of a normal Mendelian principle following individual would have the dominant expression only, but in case of incomplete dominance we would find a blend of those two traits, okay? And there's another thing which is called codominance. What does that mean? See, अभी आपने देखा RR रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स की, जब दोनों का जब हमारे पास एक हाइब्रिड मिला जिसमें R का भी एक गमिट से R आया था, एक गमिट से Y आया था, सॉरी W आया था, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल है वो है हाइब्रिड वाला जो है RW, क्योंकि एक एलील जो रेड का है वो डोमिनेंट नहीं है व्हाइट पे, इसलिए हमें क्या मिला, एक ब्लेंड ऑफ कलर मिला जो कि पिंक है। व्हाइट एंड रेड को हम कंबाइन करेंगे तो वी गेट अ पिंक कलर, सो एक ब्लेंड मिला। अब कोडोमिनेंस का क्या मतलब हुआ? अब देखिए ये चीज उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में थोड़ा सा फर्क है, वो चीज को जानने की कोशिश करें। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, क्योंकि लाल डोमिनेंट नहीं था व्हाइट पे, इसीलिए दोनों के अपने एक्सप्रेशंस एक साथ ब्लेंड होके निकले, मिक्स हो गए। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों के, यदि लाल और व्हाइट रहे होते, दोनों के एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते थे इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि यदि वो कोडोमिनेंट शो करते वो रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स, यदि वी आर टेकिंग आर्बिट्ररी सिचुएशन कि यदि वो रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स एक कोडोमिनेंस शो करते होते तो we would have got flowers with a heterozygous condition in which we would find a flower with white patches on red, or some portion of the flower red, some portion of the flower white. Getting it? Codominance means every allele would express itself completely but together with the another allele, है ना? एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं, तो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, रेड डोमिनेंट नहीं था इसीलिए हमें ब्लेंड मिला। सपोज रेड डोमिनेंट हुआ होता तो हमें हाइब्रिड कंडीशन में हमें रेड फ्लावर्स ही मिले रहते थे, राइट? अब कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि रेड भले ही, जैसे हमने पहले कंडीशन में क्या कहा था, रेड डोमिनेंट नहीं है व्हाइट पे इसलिए ब्लेंड मिला, लेकिन रेड भी डोमिनेंट है और दूसरा जो उसका जो ट्रेट है जो व्हाइट, वो भी अपनी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है विद डोमिनेंस, तो क्या होगा, ये दोनों साथ में एग्जिस्ट होते हैं, यानी कि फ्लावर मिलेगा जिसमें रेड कलर भी रहेगा और व्हाइट कलर भी रहेगा, और हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे यहाँ वहाँ, राइट? तो वही ये कोडोमिनेंस ये हम हेन, हमारे जो चिक और हेन है उनमें दिखता है, when both alleles contribute to the phenotype we call it codominance। उसमें क्या था, दोनों जो एलील्स थे एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं थे इसलिए हमको ब्लेंड मिला। कोडोमिनेंस में कब होता है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब दोनों एलील्स है ना, दोनों एलील्स एक ही कैरेक्टर के लिए दोनों एलील्स हैं, वो दोनों
क्या करते हैं, साथ में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो हम उसको बोलते हैं कोडोमिनेंट्स, राइट। तो कलर्स आर नॉट ब्लेंडेड, कलर यहाँ ब्लेंड नहीं होते, दे अपीयर सेपरेटली, ठीक है। जैसे कि इन सम वैरायटीज ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है चिकन, गलत लिखा है, चिकन लिखा है, चिकन होता है। इन सम वैरायटीज ऑफ चिकन एंड ब्लैक फेदर्ड अलील इज कोडोमिनेंट विद द व्हाइट फेदर्ड अलील। यानी वो जो चिकन है, चिकन के जो फेदर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के जो है और एक व्हाइट कलर के फेदर्स है, ये दोनों अपने आप को कोडोमिनेंटली, मतलब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। फेदर के कलर के लिए जीन है वो, लेकिन दो एलील्स हैं, जो दोनों एलील्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में ब्लेंड ना होते हुए, यानी कि ग्रे कलर का ना होते हुए, वो कुछ फेदर्स व्हाइट रहेंगे, कुछ फेदर्स ब्लैक रहते हैं, ठीक है। So the chicken will have feathers that are, you know, speckled black and white with no blending, right? तो अभी ह्यूमन के एग्जांपल में, ह्यूमन के केस में हमें एक चीज मालूम है, ब्लड ग्रुपिंग, राइट। ब्लड ग्रुपिंग का दिया ना यहाँ पे, कोडोमिनेंट्स, हाँ, ब्लड ग्रुप्स शो कोडोमिनेंट्स। तो जैसे कि अभी सपोज करिए ए ब्लड ग्रुप है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन अवेलेबल है। बी ब्लड ग्रुप है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन अवेलेबल है, राइट। और ए बी ग्रुप जो है वो क्या है, और ओ जो है वो क्या है। अब जैसे कि हमको मालूम है कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ एलील है। सपोज कोई एक इंसान ए ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, तो उसके पास एक पेयर ऑफ एलील्स है, एक पेयर ऑफ जीन्स है, जो ए को डिस्प्ले करने के लिए, ए यूजुअली ए क्या होता है मालूम है आपको, ब्लड ग्रुप ए है, मतलब क्या है, एनीबॉडी? IA. हाँ, आई में सब इम्यूनोग्लोबुलिन वाला है ना। तो ये आई ए मतलब क्या है, आई मीन मेरा वो पूछने का मतलब नहीं था, मेरा ये पूछने का मतलब है कि यदि आप ए ग्रुप के हैं तो आप में क्या चीज है खास जिससे हम आपको ए ग्रुप में डालते हैं, और मुझ में क्या चीज है खास जिससे मैं अपने आप को बी ग्रुप में डालूंगा। एनीबॉडी? ठीक है। तो हमारे आरबीसीज के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होता है, जो ए टाइप का रहा तो हम उसको ए ब्लड ग्रुप मानते हैं, यदि बी टाइप का रहा तो हम उसे बी ब्लड ग्रुप मानते हैं। यदि उसके मेम्ब्रेन पे दोनों टाइप के एंटीजेंस नजर आते हैं, ए भी नजर आता है, बी भी नजर आता है, तो हम उसको ए बी ग्रुप बोलते हैं। और यदि आरबीसी के ऊपर ना ही ए टाइप का प्रोटीन दिखता है, ना ही बी टाइप का प्रोटीन दिखता है, तो हम उसको ओ ब्लड ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। यानी कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमारे पास दो पेयर्स ऑफ एलील्स हैं जो ये शो करते हैं, और ये दोनों कोडोमिनेंट शो करते हैं, इनकम्प्लीट नहीं। यदि इनकम्प्लीट रहा होता तो आधा ए आधा बी एक्सप्रेस हुआ रहता था, but it's not like they don't get blended, so they get expressed themselves separately। तो जैसे कि अभी आपने कहा ए ब्लड ग्रुप है, यानी उसके आरबीसीज के मेम्ब्रेन पे एक टाइप का प्रोटीन जिसको हम ए डिनोट करते हैं, राइट, एक एंटीजन है, एक प्रोटीन है, यदि वो प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं कि वो ब्लड ग्रुप ए का है। तो वो प्रोटीन जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे, उसका एक्सप्रेशन के लिए एक जीन होगा। यदि वो होमोजाइगसली डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाली बात ही नहीं आ रही है, यदि होमोजाइगसली प्रेजेंट है तो यानी कि दोनों आई जैसे आपने कहा था, एक पेयर ऑफ एलील्स है, ए ग्रुप है उसका, इसका मतलब उसके पास जो पेयर ऑफ एलील्स है वो ए और ए रहेगा। यदि सोचिए कि वो ए वाला बंदा, किसी बंदा या बंदी किसी अपोजिट सेक्स से, यानी कि जिसके पास ए है ही नहीं, ओ है, ओ वाले बंदे से क्रॉस किए या मेट किया, तो उनके जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें कैसे होगा, ए ओ यानी कि हाइब्रिड सिचुएशन बनेगी जो ए ओ कॉम्बिनेशन लेके आएगा, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन ए ओ। तो ये क्या शो करता है, अब देखा जाए तो यहाँ पे मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो होता है, मेंडेलियन प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है। कैसे
कि वो AO वाला बंदा भी अपने आप को A ग्रुप ही एक्सप्रेस करेगा। अब इसके पीछे थोड़े से और फिजियोलॉजी है, वो बाद में पढ़ेंगे कभी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि A ग्रुप वाला बंदा होमोजाइगसली प्रेजेंट है, जीनोटाइपिकली होमोजाइगस है, तो भी वो A ग्रुप शो करेगा, और वो हेटेरोजाइगस भी है जीनोटाइपिकली, तो भी वो अपने आप को A ग्रुप फॉलो करेगा और एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वो मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो करता है। वैसे ब्लड ग्रुपिंग के लिए एक दूसरा प्रोटीन है जो किसी किसी इंडिविजुअल से पाया जाता है इन प्लेस ऑफ A, वो है B। यदि किसी इंडिविजुअल में B प्रोटीन पाया जा रहा है उसके आरबीसी के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर, तो हम उसको B ब्लड ग्रुप में बोलते हैं, B ब्लड ग्रुप में है। तो B ब्लड ग्रुप में है मतलब उसके पास एक A टाइप का प्रोटीन नहीं है, लेकिन B टाइप का प्रोटीन है। वो B टाइप का प्रोटीन के लिए एक पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है। वो एक पेयर ऑफ एलील के प्रेजेंस के कारण वो भी होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे, B रहेंगे, तो B ब्लड ग्रुप आएगा। यदि वो हेटेरोजाइगस, जीनोटाइपिकली हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाएंगे, B और O वाली पोजीशन पे जाएंगे, तो भी वो B को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि वो मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। लेकिन जब ये दोनों जीन्स हमारी ह्यूमंस रेसेस में जब ये कॉम्बिनेशंस होते गए, क्रॉसेस होते गए, तो जब वो A और B वाले जब यदि मान लीजिए क्रॉस होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स जो कंप्लीटली A था और कंप्लीटली B था, तो उसमें आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, A और B आएगा। लेकिन दिखाया गया कि A और B जो कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए डिपिक्टेड हैं और जो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पे डिस्प्ले होता है या फिर अपीयर होता है, तो ये जो दोनों हैं, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं। ये दोनों एक दूसरे को, एक को डोमिनेंट एक को रिसेसिव ऐसा बरकरार नहीं देते, दोनों साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए जब ए बी ग्रुप होता है तो वो ए के भी कैरेक्टर्स फॉलो करता है, बी के भी फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं को डोमिनेंस। और ये दोनों के दोनों नहीं रहे, दोनों के दोनों नहीं रहे, तो अच्छा अभी मैं आपको एक छोटा सा एक सॉरी क्या बोलते हैं असाइनमेंट सॉर्ट ऑफ देता हूँ कि सपोज करिए एक मेल है, वो ए कंप्लीटली लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, लिख रहे हैं आप लोग? हेलो, यस सर। हाँ, तो पहला इंडिविजुअल है मेल या फीमेल, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, पहला इंडिविजुअल कैपिटल ए ये कॉम्बिनेशन का इंडिविजुअल है, वो क्रॉस करेगा, ठीक है, कैपिटल ए यस सर। और ओ, यानी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कैपिटल बी वो क्रॉस कर रहा है बी और ओ से, कैपिटल बी कैपिटल ओ। अब एक तीसरा कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए कैपिटल ओ, वो एक इंडिविजुअल क्रॉस करेगा कैपिटल बी कैपिटल ओ। पहला था कैपिटल ए यानी कि ए होमोजाइगस इनटू ए हेटेरोजाइगस, दूसरा मैंने कॉम्बिनेशन दिया आपको बी होमोजाइगस और बी हेटेरोजाइगस, और तीसरा कॉम्बिनेशन दिया मैंने ए हेटेरोजाइगस क्रॉस करता है बी हेटेरोजाइगस से। ये तीनों क्या पे वो जो पनेट स्क्वायर्स बनाइए या फिर वो वेन डायग्राम्स में से क्रॉस करके गोले गोले बनाइए जो आपको मैं दिखाया था लास्ट टाइम, ये दोनों डायग्राम्स बना के आप मेरे को सबमिट करिए, ठीक है। मैं असाइनमेंट डाल दूंगा उसमें सबमिट करना आप लोग, ठीक है। सब लोग ड्रॉ करिएगा तीनों कॉम्बिनेशंस को कि उनके प्रोजेनी कैसे बनेगी और कैसी नजर आएगी, ओके। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे वही समझाया हुआ है, लेकिन आपको ये बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ए ओ जो है ये हेटेरोजाइगस ए है, ये होमोजाइगस ए है। देखिए इसमें जो पेयर ऑफ एलील्स है वो ए ओ है, ए यही मैंने आपको दिया। आपको मैंने बोला ये दो कॉम्बिनेशन को क्रॉस करके बताइए और ये दो कॉम्बिनेशन क्रॉस करके बताइए, और दूसरी बात ए और ये दोनों कॉम्बिनेशन क्रॉस करके आप डायग्राम्स बनाइए और मुझे बताइएगा, ठीक है। अब कोडोमिनेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अनदर काइंड ऑफ डोमिनेंस जो है ट्रेड्स डू नॉट मिक्स, है ना, ये जो कोडोमिनेंस हम जो बात कर रहे थे, बट दे आर बोथ यू नो
displayed. ठीक है, तो यूज ऑफ कैपिटल दोनों के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है नहीं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेड काउ CR, ठीक है, व्हाइट काउ CW, रेड एंड व्हाइट स्पॉटेड, ये ऐसे बन जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस. आपने देखा होगा ये बहुत सारे एनिमल्स में ऐसे डिफरेंट कलर पैचेस आते हैं कलर्स के. दैट इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग फॉर वन कैरेक्टर. कलर ऑफ स्किन के लिए डिनोट कर रहे हैं वो, लेकिन दो अलग अलग जीन्स उनके उसमें आ चुके हैं, राइट, एंड दे बोथ कोएग्जिस्ट. वो एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं है. ओके, ये क्या है, दिस इज मल्टीपल एल्स के बारे में, तो ये हम बाद में देखेंगे. आज के लिए बस इतना ही, और मैं असाइनमेंट डालता हूँ कि ड्रॉ द पनेट स्क्वायर्स फॉर द कॉम्बिनेशंस लिख दूंगा, आप लोग उसमें सबमिट करिएगा. ओके, आज के लिए बस इतना, हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे. चलिए बाय, थैंक यू. सर कब तक देना है? जितनी जल्दी हो सके, आज आपने पढ़ा है आज ही कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मैं एक दिन का टाइम दूंगा वैसे कल तक का. ओके, चलिए बाय बाय.